Good morning, students. Hope you all are fine. Today I'm going to start the next topic, features of democracy. But before discussing this topic, let us recall what is democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So, from this definition, it is very clear that the rulers are elected by the people. But how they are elected? It is through election. So, election is the main process through which rulers are elected. Without election, democracy cannot function. Some leaders use malpractices and fraud in winning the election. Even some countries pretend to be democratic country and in actually they are not. So how do we know if they are actually democratic country or non-democratic country? To know all this, we have to study the features of democracy. Once we know the feature of democracy, we will be able to bifurcate between democratic country and non-democratic country. तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सिटीजन्स अपने लीडर को चुनते हैं और इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी सही से फंक्शन नहीं कर सकती है. तो लेट्स स्टार्ट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. In a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. तो अगर ये डिफिनेशन फीचर अगर हम देखते हैं डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि जो सिटीजन जिनको जिताए हैं, जो लीडर्स इलेक्ट हुए हैं, वही मेजर डिसीजन लेंगे और कोई डिसीजन नहीं ले सकता है. अगर हम देखते हैं अगर इसका एग्जाम्पल, तो परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था. परवेज़ मुशर्रफ इन अक्टूबर 1999 led a military coup and removed Mr. Nawaz Sharif from the post of Prime Minister, and he himself became the chief executive and he started ruling the country. In 2002, he led a referendum and took extension of 5 years. Now, what is referendum? Referendum means direct or universal vote in which all the citizens are invited to vote on a particular proposal. तो referendum एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सभी लोग एक साथ वोट करते हैं और कोई डिसीजन अगर उनको लेना हो. तो बाद में ये पता चला, पाकिस्तानी मीडिया एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट सेड दैट दिस रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. तो ये पता चला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम का गलत इस्तेमाल करते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट वो बन गए हैं. So this is not the ideal form of democracy. To be ideal form of democracy, the decisions are taken by the elected leaders. Now here Pervez Musharraf is not elected by the people. He himself became the president. तो ये फीचर ऑलरेडी क्लियर होता है यहाँ पे कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही डिसीजन ले सकते हैं अपने सिटीजन्स के लिए. Now coming on to the second feature of democracy, that is free and fair electoral competition. A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. अब इस फीचर की बात अगर करें तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होना ही चाहिए. फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब कोई भी माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड उसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, मनी पावर मसल पावर का यूज़ ना किया जाए और इलेक्शन सही से हो. और यहाँ पे एक चीज़ और है
कि जो पार्टी एक बार बन गई है, ऐसा ना हो कि हर बार लगातार वही पार्टी बनती चली जा रही है, दूसरी पार्टी को भी मौका वहाँ पे मिलना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर रूल ओवर द कंट्री फॉर 10 long years. And in 2014 BJP won the election and Narendra Modi became the Prime Minister of India. Again, when in 2019 election was held, BJP again won and Mr. Narendra Modi became the Prime Minister. तो यहाँ पे क्लियरली ये शो हो रहा है कि एक पार्टी जो 10 साल से रूल कर रही थी कंट्री पे, वो उसके बाद हार जाती है और दूसरी पार्टी फिर आ जाती है. और अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है तो सिटीजन्स उसको फिर से री इलेक्ट करते हैं. जैसे कि बीजेपी के केस में हमने देखा कि 2019 इलेक्शन में फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई. वहीं पे तो दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. Now the next example is about Mexico. Mexico is a country in North America and वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो 6 साल पे होता है. यहाँ इंडिया में 5 years के बाद होता है और मेक्सिको में 6 years के बाद होता है. तो वहाँ पे एक पार्टी है PRI जो कि बहुत पावरफुल पार्टी है और हर बार वही पार्टी जीतती है. ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है, पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड एट द लास्ट मोमेंट. वो क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ चेंज कर देते हैं. मान लीजिए कि कुछ लोग जा रहे हैं, पोलिंग बूथ कहीं पर है दूसरे जगह, वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला नहीं, वहाँ से वो शिफ्ट हो गया, अब उनको दूसरे जगह जाना है काफ़ी दूर, तो वो फिर वहाँ नहीं जाते हैं और वहाँ का जो वोट है वो PRI पार्टी को चला जाता है, जिस वजह से हर बार इसी पार्टी को विक्ट्री होती है. So this is not the ideal form of democracy. To be an ideal form of democracy, there must be free and fair electoral competition. So the second feature is clear now. Coming on to the third feature, one person, one vote, one value. This is the most important feature and it's also very easy to remember this feature. In a democracy, each other citizen must have one vote and each vote must have one value. अगर यहाँ इस फीचर को देखते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि एक पर्सन है, अगर वो वोट दे रहा है तो उसका वैल्यू एक ही होगा. अब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आ जाए या कोई भी अमीर से अमीर आदमी आ जाए, कोई भी अगर वोट दे रहा है तो उसका ऐसा नहीं है कि 100 वैल्यू काउंट होगा, उसका भी एक ही वैल्यू होगा जो गरीब आदमी या आम आदमी वोट दे रहा है. So this is a simple feature, one person, one vote, one value. Now coming on to the last feature of democracy, that is rule of law and respect for rights. Democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. तो इसकी बात अगर करें लास्ट फीचर की, तो इसमें जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके पावर पे लिमिट लगाई जाती है. ऐसा नहीं है कि कोई लीडर अगर आ गया तो वो अपना मनमानी करने लगे एंड स्टार्ट मिसयूजिंग द पावर. ऐसा नहीं वो कर सकता है, उसको अपने पावर को लिमिट में यूज़ करना है. लेकिन एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग जिम्बाब्वे की. जिम्बाब्वे इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका. वहाँ पे एक पार्टी है ZANU PF. वहाँ के प्रेसिडेंट थे पहले रॉबर्ट मुगाबे. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पार्टी बहुत पावरफुल थी एंड several times this party have changed the constitution of the country and by doing this they have increased their power and they start harassing other political parties. तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और अपने पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और जिसका हेल्प करके वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैरेस करती थी, उसको परेशान करती थी, उसको जीतने नहीं देती थी. तो हमेशा जो इलेक्शन है वो रॉबर्ट मुगाबे जीत जाते थे. तो दिस इज़ नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी.
आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तभी होगा जब रूलर्स जो हैं वो पावर को लिमिट में यूज करेंगे, उसका मिस यूज नहीं करेंगे. So these are the features of democracy. Today we have studied the 4 features of democracy, and in the next class I will be discussing argument against democracy. What are the drawbacks of democracy? So that's all for today. Thank you and have a nice day.